So good morning, students. Today we are starting unit number 2. Good morning, sir. Good morning. That is on wind energy. Okay. So can anybody tell what is the meaning of wind here? Because air is all around us. Then what is the difference between air and wind? बता सकता है आप में से कोई? शुरू से लेकर अभी तक आप में से कोई बता सकता है कि विंड और एयर में क्या डिफरेंस होता है? एनीबॉडी, कोई बता सकता है बेटा? चलो कोई बात नहीं. Without air we cannot survive in this earth. For every living being, air is necessary. What wind is, when air blows at a particular speed, then we call it as wind. Okay. So I think there should be no problem. It is wind as well as air. जब air बहुत तेजी से move होती है, then we call it as wind. So can we get energy from wind also? बता सकते हैं आप कि क्या एनर्जी विंड से ली जा सकती है और नहीं ली जा सकती है? ले सकते हैं सर. कैसे ले सकते हैं? ले सकते हैं. Can you quote some examples? Actually, wind energy has been harnessed by the human being for past centuries. बहुत सालों, सैकड़ों सालों से इसका अपन उपयोग करते आ रहे हैं. But in what form we are using wind energy? सब विंड में से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी को. सर ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है. एक सिंपल एग्जांपल में अगली नेक्स्ट शीट दिखाता हूं आपको. इस पे अपन चलते हैं. इस पे यू कैन सी दिस. ठीक है ना. दिस इज अ बोट. ठीक है ना. विच इज बीइंग सेल्ड बाय यूजिंग विंड एनर्जी. कुछ नहीं किया है इन्होंने, कपड़े के पाल उसमें लगा दिए हैं. ठीक है. सो इन दिस डायरेक्शन विंड ब्लोज, this boat also sails in the same direction. So this concept has been used by humanity for 1000 years. Okay. पुराने समय में जब लोग इसका ज्यादा प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं समझते तब भी इसको इस्तेमाल किया जाता था. Time also this windmill is being utilized in Europe and some other countries for grinding grains and some other purposes also. So wind has been used in ancient times and medieval times, and currently we are harnessing the wind by installing these wind turbines. You can see horizontal axis wind turbine, multiple wind turbines mounted here, and these wind turbines rotate because wind blows across those wind turbines. ठीक है ना? And energy is generated. और कोई इशू तो नहीं बेटा इसमें? If you have any doubt, you can unmute yourself and ask the question. ठीक है ना. अदरवाइज अपने आप को म्यूट रखिए उसमें. अब क्वेश्चन पहले से वही आता है कि व्हाट इज विंड एंड हाउ डज इट ब्लो, हाउ इट इज जनरेटेड. So wind is air and motion. It is produced by the uneven heating of the earth's surface by the sun. Since the earth's surface is made of various land and water formations, it absorbs the sun's radiation unevenly. So earth's surface heats up unevenly due to the radiation absorbed by the earth. Radiation of the sun absorbed by the earth. अब जब हम विंड को बताते हैं तो उसके लिए दो चीजें जरूरी होती हैं. क्या जरूरी होती हैं? वी हैव टू स्पेसिफाई द स्पीड एंड द डायरेक्शन. हमने जिस डायरेक्शन में विंड मिल या विंड टर्बाइन माउंट की है, यदि विंड उस डायरेक्शन में ब्लो नहीं हो रही है तो इस केस में हम एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ द विंड मिल और द विंड टर्बाइन. नंबर वन. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द विंड एट विच विंड इज ब्लोइंग. ठीक है ना. सो द स्पीड एट विच विंड इज ब्लोइंग, amount of energy generated depends on that also. We can see it in later slides. The question is how wind is generated. So as the sun warms the earth's surface, the atmosphere warms too. ठीक है ना. Some parts of the earth receive direct rays from the sun all year and are always warm. Other places receive indirect rays, so the climate is colder. So somewhere on the earth climate is colder, on other place it is hotter. So due to the difference in the climatic conditions,
ठीक है, warm air moves upward and cold air moves downward. This is the tendency of the air or wind to blow. Actually, there is the difference in the density of the two airs, one which is warm, another which is cold. Cold air is having larger density in comparison to warm air. That's why warm air moves upward and cold air moves downward. तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, विंड की मूवमेंट, एयर का मूवमेंट होने लगता है, और वही एयर यदि ज्यादा स्पीड से मूव होने लगा तो अपन उसको विंड बोलने लगते हैं. ओके, warm air which weighs less than cold air rises, then cold air moves in and replaces the rising warm air. This movement of air is what makes the wind blow. So this is the only reason because which air moving or wind moves because of that. ठीक है ना. One more thing is important. It is not only the radiation of the sun which is absorbed by the earth at various places which is responsible for the wind to move or to blow. The next reason is the movement of the earth around the sun. You know that earth is tilted about certain axis, ठीक है, in respect to the sun, and it also rotates around the sun. तो उसकी वजह से अर्थ के अलग अलग प्लेसेस पे कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, कहीं पे कम रहता है, उसकी वजह से एयर ब्लो होती है. तो ये दो चीजें होती हैं, एक तो रेडिएशन की वजह से और दूसरा अर्थ के मूवमेंट की वजह से, जिसकी वजह से विंड यहाँ पे ब्लो होती है. ठीक है ना. एंड वी हैव सीन these two example. This is the ancient example, this medieval, you can see this is the modern. So 3 images are there on this slide. ठीक है. So wind energy has been moved in some or other way from ancient time also. उस समय क्या करते थे, डायरेक्ट हम वर्क करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना. और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम विंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं. दैट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइज थ्रू ग्रिड टू cities, industries, ठीक है, home, and that is used for doing some work. Okay. तो अपन ये देख सकते हैं कि एंशिएंट टाइम से लेके अभी तक में हम विंड का एप्लीकेशन करते आ रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन के करने के तरीके अब बदल गए हैं. ठीक है. Now, what is the energy? How, or we can say how energy is contained by the wind. तो अपन ने देखा होगा कि जब कहीं पर स्टॉर्म आता है तो विंड अपने साथ बहुत सी चीजों को बहा के उड़ा के ले जाता है. ठीक है. कई बार जो टॉर्नेडो आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, तो उसकी वजह से मकान की छत उड़ जाती हैं या कोई दूसरी चीजें वहां पे ब्लो हो जाती है. मतलब जो विंड मूव हो रही है उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है. तो हमारा यहाँ पे पर्पज क्या है, वी वांट टू कन्वर्ट द एनर्जी अवेलेबल इन द विंड आइदर फॉर generation of the electricity or for doing some useful work. In present time, in modern day times, we are always using the wind energy for generation of the electricity. So that's why we are seeing this slide in that respect. तो wind में कौन सी एनर्जी है? Since wind is moving, it has some mass also. Mass हालांकि बहुत कम होता, but its velocity is very high. That's why we can say that the moving wind or blowing wind is having kinetic energy. तो विंड के अंदर जो एनर्जी होती है वो किस रूप में होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है. विंड किसी एक डायरेक्शन में मूव होती रहती है, बट बाय यूजिंग सर्टेन टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न टाइम्स वी वांट टू कन्वर्ट दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. तो जो प्रिंसिपल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होता है या स्टीम पावर प्लांट में होता है, almost similar kind of principle is utilized in this case also. The only difference is there, in case of hydroelectric turbines, it is the water power which rotates the generator. In case of steam engine or steam turbine, it is the power available in the steam which rotates the shaft of the turbine. Similarly, in the case of wind turbine, ठीक है, or windmills, it is the kinetic energy available in the wind which rotates the turbine, which rotates the shaft of the wind turbine. Okay, समझ में आ गया नहीं आ गया? मतलब ऑलमोस्ट जो कन्वर्शन है हमारा बिल्कुल उसी प्रकार से हो रहा है. हम क्या करते हैं, विंड में अवेलेबल जो काइनेटिक एनर्जी है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं. क्या रोटेट कराते हैं? शाफ्ट ऑफ द विंड टरबाइन. ठीक है ना. और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है. सो रेस्ट ऑफ द थिंग रिमेन्स द सेम. यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं बेटे? ठीक है. तो अब क्या होता है, यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे होगे जिसमें लिखा है दिस इज सिलेंडर ऑफ एयर.
एक्चुअली यहाँ पे जो विंड मिल अपन ने इसके ठीक पहले का जो फिगर देखा हुआ है, अपन इसको देखते हैं, इस वाले को। तो इस विंड ब्लेड का कुछ रेडियस है और जब ये रोटेट होगी तो इसका कुछ डायमीटर आएगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली दिस डायमीटर इज द डायमीटर ऑफ द विंड ब्लेड व्हेन इट इज रोटेटिंग अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। अब क्या होगा, जब विंड इस डायरेक्शन में ब्लो हो रही होगी तो क्या करेगी, इस विंड में अवेलेबल जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, दैट विल ट्राई टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ द विंड टरबाइन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस सिलेंडर का जो डायमीटर लिया है या जो रेडियस ली है, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस विंड टरबाइन ब्लेड। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, ठीक है। हमने तो सिलेंडर ऑफ एयर दिखाया है, तो ये दिखाया है कि इतने डायरेक्शन में रोटेट होगी, या इस डायरेक्शन में ये मूव हो रही है और इसकी वजह से जो विंड टरबाइन की ब्लेड्स हैं वो यहाँ पे रोटेट होंगी। उसके सिलेंडर को हमने यहाँ पे दिखाया हुआ, हमारा एक इमेजनरी दिखाया हुआ। अब क्या होगा, जो विंड इस सिलेंडर के थ्रू पास होगी उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो विंड की ब्लेड, विंड टरबाइन के ब्लेड को रोटेट कराएगी। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा फिजिक्स में कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज द मास एंड v इज द स्पीड, ठीक है ना। v क्या है यहाँ पे, स्पीड है, ठीक है। और यूनिट ऑफ एनर्जी आर kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको अपन बोलते हैं जूल, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं बेटे। The mass from which energy is extracted is the mass contained in the volume of air. अब हमने क्या किया, ये हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल गया, इसकी ये कुछ लेंथ हो गई, तो इस वॉल्यूम में जो अवेलेबल मास है दैट विल ट्राई टू रोटेट द विंड मिल, या the mass from which energy is extracted is the mass contained in the volume of air, ठीक है, in the volume of air that will flow through the rotor. For a horizontal axis wind turbine, HAWT, there are different kinds of wind turbines. One is horizontal axis, which is having axis in horizontal direction. इसके पहले अपन ने जो इमेज देखी थी वो horizontal axis wind turbine है कि there are vertical axis wind turbine also. So this figure has been drawn, or you can consider this figure for horizontal axis wind turbine. ठीक है ना। तो जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, this cross sectional area multiplied by this length, ठीक है। अब क्या होता है, द एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कैलकुलेटेड एज दिस, ई डॉट, ये क्या है, डेरिवेशन है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। मास क्या है, मास कैन बी रिटन एज रो ए वी, वेयर रो इज द डेंसिटी, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड v इज द स्पीड और वेलोसिटी। एक्चुअली air cross sectional area multiplied by the velocity per unit time, so this gives you length, so this becomes the volume. So when you multiply volume with the density of the air, you will get the mass of the air entering into this, ठीक है ना। तो यहां से कितना मास एंटर हो रहा होगा, that can be taken from this formula. When we put the value of m in this formula, we can get this half rho a v into v square. आपने कुछ नहीं किया, we have replaced m by rho a b, ठीक है। So energy available in the wind or power available in the wind can be written as half rho into a into v square, or finally it can be written as half rho a into vq, where rho is the density of the air, a is the cross sectional area. ये कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये हमने लिया है टरबाइन ब्लेड की रेडियस का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यदि टरबाइन ब्लेड का रेडियस r है, then area can be taken as pi r square. For a horizontal axis wind turbine, cross sectional area can be taken as pi r square, and v is the velocity that can be measured by using device, ठीक है ना। तो इस केस में जो अवेलेबल एनर्जी है that can be written in this form also, ठीक है ना, half rho a into vq. If we replace or we put the value of cross sectional a as pi r square, that then it can be written as power available in the wind, or kinetic energy of the wind can be written as half rho pi r square into vq, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है बेटे, एनीवन, किसी को किसी प्रकार का डाउट हो? नो सर, बहुत सिंपल टॉक, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, मतलब विंड क्या चीज है, विंड कैसे ब्लो होती है, विंड के एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं पुराने समय में। अभी तो हम नॉर्मली जो विंड टरबाइन का उपयोग करते हैं उसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक है ना। और प्रिंसिपल वही रहता है जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का होता है या
थर्मल पावर प्लांट में हम कुछ नहीं करते हैं, शाफ्ट को रोटेट कराते हैं, टरबाइन के शाफ्ट को रोटेट कराते हैं, किसके थ्रू? विंड में अवेलेबल काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, ठीक है ना। नेक्स्ट, the distinction between power energy important. If a wind turbine operates at a constant power of 10 kilowatt for 2 hours, then it will produce 20 kilowatt hour of energy. ये कुछ नहीं है, ये तो सिंपल एक स्लाइड इसलिए रखी गई है ताकि आप इसको भी समझ सको, और कुछ नहीं इसका पर्पस यहाँ पर, ठीक है ना। Now, this slide is very important. We have to devote at least one lecture for understanding this statistical distribution of wind energy. ठीक है, तो कुछ नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जैसे सपोज वी आर हैविंग ए 25 वाट बल्ब और 100 वाट बल्ब, एंड इफ इट इज यूज्ड फॉर 3 आवर्स, then what is the amount of energy consumed? It is 75 watt hour, 25 into 3, and since it is being utilized for 3 hours, that's why we write it here at 75 watt hour. If 100 watt bulb is used for 3 hours, then the energy consumed is 300 watt hour. So this slide is given to give you an understanding of energy and power. Okay, what about statistical distribution of wind speed? देखो, हम सबको पता है कि हमारे चारों तरफ एयर है, यदि एयर नहीं होगी तो हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, नाइदर ह्यूमन बीइंग नॉर एनिमल्स, प्लांट्स, कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो हम सब के लिए एयर जरूरी, एयर तो है, बट क्या होता है कि जो एयर की वेलोसिटी है, यदि वो बहुत कम है, देन इट इज नॉट गोइंग टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ द विंड टरबाइन, ठीक है ना। तो यदि हम चाहते हैं कि विंड टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट कर रहे हैं, तो उसके लिए विंड की एक स्पीड का होना जरूरी होता है। जैसे हमने शुरुआत में बोला था कि विंड के लिए, विंड से एनर्जी लेने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, नंबर 1 स्पीड ऑफ द विंड एंड नंबर 2 इट्स डायरेक्शन। तो क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस होते हैं या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है, दैट हैज डेटा अवेलेबल ऑफ विंड स्पीड एंड डायरेक्शन एट वेरियस प्लेसेस। यानी गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके पास डेटा होता है, ठीक है, कि किस जगह पे विंड किस स्पीड से ब्लो होती है, कितना टाइम। एक्चुअली विंड इज द एनर्जी विच इज अवेलेबल फ्रीली, लाइक सोलर एनर्जी। एनीबडी कैन इंस्टॉल सोलर पैनल्स एंड कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और वी कैन इंस्टॉल फ्लैट प्लेट कलेक्टर, कंसंट्रेटिंग कलेक्टर फॉर utilizing the energy available in the solar radiation. Similarly, wind velocity, wind energy is also available freely. यदि हम चाहते हैं उसको, ठीक है ना, यूटिलाइज करना, तो हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा? either we have to install a windmill, ठीक है ना, और विंड टरबाइन। लेकिन विंड मिल और विंड टरबाइन तभी काम करेंगी जब विंड की सर्टेन स्पीड होगी, ठीक है ना। तो क्या होता है, हमारे पास एक डेटा होना चाहिए जहां पर विंड मिल इंस्टॉल करने जा रहे हैं कि वहां पे थ्रू आउट द ईयर विंड की एक एवरेज स्पीड कितनी होती है, वेलोसिटी कितनी होती है, स्पीड कितनी होती है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका एक स्टैटिस्टिकल डेटा अपने पास रखना होता है अलग अलग प्लेसेस पे, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू इंस्टॉल विंड टरबाइन्स, विंड मिल्स एनीवेयर। आपने देखा होगा कि जब हम भोपाल से इंदौर की तरफ जाते हैं तो वहां पे देवास के पास में कुछ विंड टरबाइन्स लगे हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए लगाए गए कि वो वहां पे विंड की वेलोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। So wind speed is a stochastic quantity. The most common density function used to represent wind speed is Beeble function. अब Beeble क्यों बोलते हैं, तो उसका कारण है कि it is named after Swedish engineer, scientist and mathematician Ballo D. Beeble, who described it in detail in 1951. मतलब बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, 1950s में उन्होंने डिस्क्राइब किया था। सिर्फ एक पैटर्न डिस्क्राइब करता है विंड की स्पीड का एंड नथिंग एल्स। देयर आर अदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आल्सो which can be used for getting the data of the wind speed. Like, but this is most authentic and this is generally used for finalizing the statistical data of the wind speed. ठीक है ना। This is derivation of V, wind speed, ठीक है ना, या air velocity, and this is dependent on 3 factors: wind speed, sorry, 2 factors, K is the shift factor, A is the scale factor. This is not area, ठीक है ना, this is scale factor and this is K factor. इसकी कोई यूनिट यहाँ पे नहीं है, इसकी यहाँ पे यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक।
So it is written as derivation of b is equal to k upon a multiplied by v upon a raised to k minus 1 and e raised to. तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है जो कि जो साइंटिस्ट थे बीबल, उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था. एंड दिस इज फॉर this is, there is a condition there that wind velocity should be more than 0. Okay, wind velocity should be more than 0. अब ये है क्या, अपन आगे और समझते हैं इसको बीबल फंक्शन को. ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू विंड स्पीड. Here you can see 4 or 5 curves. ठीक है ना, 1 2 3 4 5 curves are there where k is equal to 1. different values of k यहाँ पे दिखाई गई है. ओके क्या है यहाँ पे, सेफ फैक्टर है. के क्या है यहाँ पे, सेफ ऑफ द कर्व है. ये सेफ ऑफ द कर्व बता रहा है वहां पे. सो के इज इक्वल टू 1. ये इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है विंड की वेलोसिटी का. के इज इक्वल टू 1.5 ये वाला है. के इज इक्वल टू 1.5. ठीक है ना, दिस वन डॉटेड. ये के इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू 2.5, के इज इक्वल टू 3. सो व्हेन के इज इक्वल टू 1 इट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. K is equal to 1, it is known as exponential distribution. K is equal to 2, Rayleigh's distribution. K is equal to 3, Gaussian distribution. ठीक है ना. So Weibull function takes several shapes depending on both K and A. ठीक है ना, यहाँ पे आपको ये दिखाया गया. यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि what is Weibull function. एक्चुअली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी. ये कुछ नहीं कर रहा है, विंड वेलोसिटी की ब्लो होने की प्रोबेबिलिटी को वहां पर दिखा रहा है. ठीक है ना. कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटे. नो क्वेश्चन, आगे चलते हैं यहाँ पर. ठीक है. Weibull डेंसिटी फंक्शन, विंड स्पीड v इज द 10 मिनट एवरेज. क्या होता है कि विंड की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट नहीं होती है, टाइम के साथ चेंज होती है. बट इट इज जनरली टेकन. यदि हम किसी जगह की विंड की स्पीड बताते हैं तो हम कैसे बता पाएंगे कि 10 मिनट का वहां पे जो एवरेज रहा है उसको हम बोलते हैं विंड की स्पीड. कई बार वो 80 किलोमीटर पर आवर होगी, कई बार 70 किलोमीटर पर आवर होगी. यदि मान लो दो ही डिस्ट्रीब्यूशन है कि शुरुआत में 80 थी और 10 मिनट बाद कितनी हो गई, 70 किलोमीटर पर आवर, देन ऑन एवरेज वी विल गेट द वेलोसिटी एज 75. एवरेज उसका वहां पे अपन ने ले लिया. In a wind measurement campaign for each 10 minute interval, the average wind speed and standard deviations are recorded. ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल डेटा अपन को रखना पड़ता है क्योंकि हम विंड मिल इंस्टॉल करने जा रहे हैं. ठीक है, और विंड मिल का काफी कॉस्ट आता है. विंड टर्बाइंस के लिए जो कॉलम रहता है उस, ठीक है ना, और उसकी ब्लेड्स रहती हैं स्पेसिफिकली डिजाइन की जाती हैं, अवेलेबल होती हैं. वो सारा का सारा जो जनरेशन रहता है वो जमीन से 30 40 50 मीटर ऊपर लगाना पड़ता है. तो उसकी काफी कॉस्ट होती है. सिविल स्ट्रक्चर भी बहुत होता है, मैकेनिकल भी बहुत होता है. तो हमको ये डेटा रखना बहुत जरूरी है कि एवरेज विंड स्पीड, स्टैंडर्ड डेविएशन उसके क्या रहेंगे. The Weibull probability distribution function is a model that represents the 10-minute average wind speed. ठीक है, this assumes that over the 10-minute interval the wind conditions are stationary. ठीक है, क्या माना गया है कि ओवर द 10 मिनट इंटरवल द विंड कंडीशंस आर स्टेज. जो एवरेज अपन ने लिया वो लगभग उसी के आसपास वहां पे मिलता रहेगा. इट कैन वेरी अप टू सर्टेन एक्सटेंट बट ऑन एन एवरेज विल रिमेन कांस्टेंट. Instead of a probability density function that represent the fraction of time wind speed is at b, it is sometimes customary to speak in terms of hours in a year. मतलब क्या होगा, हम उसको मीटर पर सेकंड पे ना बोल के, ठीक है ना, मीटर पर आवर बोलेंगे, ऐसा कुछ वहां पे उसको लिखेंगे. ठीक है, तो कुछ नहीं करते हैं. एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी दिख रही होगी 0.02, 0.04, 0.06. ये मिनट के लिए है. यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आवर में, ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है. इन अ ईयर देयर आर 8760 आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स. कुछ नहीं है, 365 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस 8760 विद दिस प्रोबेबिलिटी यू विल गेट डिफरेंट कर्व. ये कर्व आपको ऐसा मिल जाएगा. ठीक है ना, लगभग इस प्रकार का होगा, है ऑलमोस्ट वही चीज. अब क्या हो रहा है कि 5 मीटर विंड स्पीड और 10 मीटर विंड स्पीड के बीच का जो डेटा दैट इज ऑफ सम यूज. द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन 5 and 10. आवाज नहीं आ रही सर. एक मिनट रुको. हेलो सर आ रहे आ रही है बेटे. यस सर आ रही. ठीक है ठीक है.
आप चाहें तो इसके स्नैपशॉट ले लिया करो अपने मोबाइल में, वैसे मैं आपको नोट्स तो दे दूंगा 2-3 दिन के अंदर, लेकिन आपको जरूरत लगे तो इनकी स्नैपशॉट ले लिया अपने उसमें मोबाइल से ले लिया करो। तो इसका जो एरिया है 5 मीटर और 10 मीटर, एक्चुअली क्या होता है, हमको हम जो मेजरमेंट लेते हैं वो 10 मिनट ड्यूरेशन के लिए लेते हैं स्टैटिस्टिकल उसके कंडीशन के लिए। अब ये यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, एक्चुअली इसके बाद ही यहाँ पे पावर जनरेशन हो पाता है। जब 10 the area under the curve between 5 and 10 meter per second represents the total number of hours in a year the wind speed is likely to be in that wind। तो यहाँ से वो निकाल लेते हैं कितने आवर साल भर में अब यूजफुल विंड अवेलेबल होगी जिससे कि पावर जनरेशन किया जाएगा। वो कितनी ली गई है 5 to 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन कई जगहों पे ये स्पीड इससे ज्यादा, ये पर सेकंड लिखा है 10 मीटर पर सेकंड, इफ यू कन्वर्ट इट इन मिनट और आवर तो ये काफी ज्यादा होती है। 80 किलोमीटर पर आवर ऐसा कुछ वहां पे आ सकता है, 30 किलोमीटर पर आवर ऐसा कुछ वहां पे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटे, अदरवाइज आगे चलते हैं अपन। सिंपल चीज है, समझने की कुछ ज्यादा नहीं है, आगे चलते हैं अपन। Empirically, it has been observed that wind speed in most locations is a variable distribution। ठीक है ना, ये डिफरेंट काइंड के कर्व वहां पे बनते प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। तो सिर्फ यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि व्हाई वेरिएबल डेंसिटी फंक्शन इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर असेसिंग द पावर अवेलेबल इन द विंड। हम वेरिएबल डेंसिटी फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है विंड के डेटा को एनालाइज करने के लिए। हम मीन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, और जो जितनी चीजें रहती हैं इसके द्वारा हम इसको निकालते रहते हैं। ठीक है ना। Empirically, it has been observed that wind speed in most locations is a variable distribution. Furthermore, the value of K is approximately 2 for most wind profiles. This you have to remember. हमने शुरुआत में क्या देखा था कि जो probability distribution है that is dependent on 2 parameters, one is K, another A। ठीक है, एक safe factor है और दूसरा क्या है वहां पे scale factor। तो यहाँ पे K के लिए लिखा गया है K, the value of the K is approximately taken as 2। तो अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको अपन को इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नाउ मेन वेरिएंस ऑफ वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विंड स्पीड, तो फॉर्मूला है, आप चाहें तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। मेन विंड स्पीड इज गिवन इन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, जो शुरुआत में अपन ने लिखा था वहां पे। ठीक है ना, दिस इज V एंड दिस इज मीन स्पीड। ठीक है, यहाँ पे एक गामा फंक्शन दिया गया है एंड दिस इज द वेरिएंस। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आए तो आप अनम्यूट करके अपने आप को पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अटेंडेंस डाल दी होगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क क्वेश्चन। उसमें कोई पीछे नहीं रहता। क्या बेटा? डाल दिए सर। ठीक है, ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज अपन मीटिंग क्लोज करते हैं बेटे।